یہ معلومات آپ کی اسائلم کی اپیل کی سماعت میں آپ کی مدد کے لیے ہے۔ آپ اپیل کرنے والے ہیں۔ آپ نے اسائلم کے لیے درخواست دی ہے، مگر آپ کا اسائلم کا دعویٰ ہوم آفس نے نامنظور کر دیا ہے، وہ حکومتی محکمہ جو UK میں اسائلم کے دعووں پر فیصلہ کرتا ہے۔ آپ یا آپ کے وکیل نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے کیونکہ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ غلط ہے، اور اب آپ کی اپیل کی سماعت فرسٹ ایئر ٹریبیونل میں ایک خود مختار جج کرے گا۔ ٹریبیونل ہوم آفس سے مکمل طور پر خود مختار ہے۔ یہ آپ کے پاس ہوم آفس کے فیصلے کو تبدیل کروانے کا موقع ہے تاکہ آپ کے اسائلم کا دعویٰ منظور ہو جائے۔ میں اور میرے دوست بھی اسائلم کی اپیلوں کے عمل سے گزر چکے ہیں، اور کاش ہمیں بھی یہ معلومات ہوتی۔ ہمیں امید ہے کہ ان معلومات سے آپ ٹریبیونل میں زیادہ اعتماد محسوس کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنی اپیل کو لے کر فکر مند ہوں گے۔ آپ ڈر، گھبراہٹ یا بے چینی محسوس کر سکتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آگے ہونے والی چیزوں کو جاننے سے آپ کو کچھ سکون ملے گا۔ اگرچہ اپیل کا مرحلہ مشکل ہو سکتا ہے، مگر رویہ مثبت رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنی سماعت کے لیے تیار ہونا۔ اپنی سماعت کے لیے تیار ہونا سب سے اہم چیز ہے۔ کئی لوگ، مثلاً آپ کا وکیل اور مقامی معاون گروپ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ وکیل آپ کو مشورہ دیتا ہے اور آپ کا مقدمہ تیار کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وکیل نہیں ہے تو کسی معاون گروپ سے وکیل ڈھونڈنے میں مدد مانگے یا لا سوسائٹی کی ویب سائٹ کا استعمال کریں۔ آپ کا وکیل آپ کا گواہی کا بیان تیار کرے گا۔ گواہی کے بیان میں آپ کے مسترد ہونے کے خط یا انٹرویو ریکارڈنگز کے اعتراضات کی وضاحت موجود ہوتی ہے۔ گواہی کا بیان صحیح رکھنے کے لیے اس میں خود بھی حصہ لینے کی کوشش کریں۔ بیان میں موجود کوئی بھی غلطی درست کرنے سے بالکل نہ ڈریں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسے اپنے وکیل کو ضرور بتائیں، بے شک یہ کتنا مشکل ہو اور اس میں کتنی تکلیف شدہ باتیں شامل کیوں نہ ہوں، مثلاً جنسی زیادتی، گھریلو تشدد یا اذیت۔ اپنے وکیل سے قانونی دلیلیں وضاحت سے بتانے کو کہیں۔ اگر آپ کو انگریزی بولنے یا سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کو اپنی زبان کا ترجمان مانگ لینا چاہیے۔ ٹریبیونل کا ترجمان صرف کمرہ عدالت میں کام کرتا ہے۔ اپنے وکیل کو یہ بات پہلے ہی ٹریبیونل کو بتانے کو کہیں تاکہ وہ سماعت میں شرکت کے لیے کسی ترجمان کا بندوبست کر سکیں، اور تاکہ آپ اپنے بیرسٹر کے ساتھ کمرہ عدالت کے باہر بھی بات کر سکیں۔ اگر آپ خاتون ہیں جو کیس میں جنسی تشدد شامل ہونے کی وجہ سے مردوں کے سامنے بات نہیں کر سکتی تو اپنے وکیل کے ساتھ صرف خواتین کی عدالت کے آپشن پر بات کریں یا یہ اپنی اپیل کے فارم پر لکھ دیں۔ ٹریبیونل یہ فیصلہ لے گی کہ کیا یہ ممکن ہے۔ اپنے گواہی کے بیانات اور نامنظوری خط کے متعلق وجوہات کو اپنی سماعت سے پہلے دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ اہم ہے کہ آپ ان سوالات کے بارے میں سوچیں جو آپ کی سماعت کے دوران پوچھے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر ان وجوہات پر غور کریں جن کی وجہ سے ہوم آفس نے آپ کے اسائلم کا دعویٰ خارج کیا تھا۔ یقینی بنائیں کہ آپ کو ٹریبیونل کا مقام، اپنی سماعت کی تاریخ اور وقت پتہ ہو۔ اگر آپ ہوم آفس کی دی گئی رہائش میں رہتے ہیں تو ٹریبیونل تک سفر کرنے کا ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی سماعت کا نوٹس اپنے ساتھ اسائلم سپورٹ آفس میں ضرور لے کر جائیں، وہ آپ کو ٹکٹ بھیج دیں گے۔ متوقع چیزوں کے بارے میں جاننا۔ متوقع چیزوں کے بارے میں جاننا بے شک مددگار ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو ٹریبیونل کو پہلے دیکھ کر آئیں۔ آپ کا وکیل یا معاون گروپ بھی اس ضمن میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ چونکہ سماعت سرعام ہوتی ہے تو شاید آپ کوئی سماعت وہاں دیکھ بھی لیں۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا اپیل کی سماعت سے گزر چکا ہے تو آپ اس کے متعلق بات کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی اپیل جج کو اپنی بات سنانے اور مقدمے کی وضاحت کا مثبت موقع ہے۔ یہ مسترد کیے جانے کے اصل فیصلے کو الٹ بھی سکتا ہے۔ سماعت کے دن یقینی بنائیں کہ آپ ٹریبیونل میں وقت پر پہنچیں۔ اگرچہ فہرست میں آپ کی اپیل کا وقت 10 بجے صبح ہوگا، تاہم اس وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ یہ ٹی وی میں نظر آنے والی عدالتوں جیسا دکھائی دے، مگر ٹریبیونل مجرموں کے لیے نہیں ہوتی۔ ٹریبیونل میں ہر فرد سیکیورٹی سے گزرتا ہے۔ آپ ایک میٹل ڈیٹیکٹر سے گزریں گے اور آپ کے سامان کی تلاشی لی جائے گی۔ اس کا مقصد سب کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ کوئی بھی اسپرے، ایروسول، پرفیومز، ڈیوڈرنٹس یا شیشے اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں کیونکہ سیکیورٹی انہیں اپنے پاس رکھ لے گی۔ استقبالیہ کو بتائیں کہ آپ پہنچ گئے ہیں۔
फिर अदालत के कमरे के बाहर इंतजार करें। अदालती क्लर्क सुबह 10 बजे से पहले बाहर आएगा और आपका नाम पूछेगा। अदालत में आपकी नुमाइंदगी आपका बैरिस्टर करता है। जल्दी पहुंचने से आप अपने बैरिस्टर से ज्यादा निजी तौर पर बात कर सकते हैं। उनसे निजी कमरे की दस्तयाबी के मुतल्लिक पूछें। आपको अपनी समाअत के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि केसों का सिलसिला उसी दिन तय होता है। ट्रिब्यूनल शाम 4 बजे तक मुकदमा शुरू कर सकती है। अपने साथ वो सब खाने पीने का सामान और दवाइयाँ साथ लाएं जो आपको दौरान इंतजार चाहिए। आप कमरा या अदालत के अंदर कुछ खा नहीं सकते, मगर पीने के लिए वहाँ पानी मौजूद होगा। बेहतर है कि आप अपने दिमाग को मुतहर्रिक रखें ताकि जब आप अदालत में जाएं तो चौकस हों। हम जानते हैं कि आप मुस्तरब होंगे, मगर जितना हो सके खुद को पुरसुकून रखें। आप अपने दोस्तों, खानदान के लोगों या मावजुनीन को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वो आपको ज्यादा पुरएतमाद और सुकून रखने में मददगार होंगे। याद रखें, कभी कभार समातें मुलतवी भी हो जाती हैं। समात में जाना। आपको एक अदालती कारिंदा या क्लर्क अंदर आने के लिए बुलाएगा। समात के दौरान ये लोग होंगे: आपका बैरिस्टर अगर कोई है तो, एक इमिग्रेशन जज, होम ऑफिस की नुमाइंदगी करने वाला एक ऑफिसर जिसे हॉपर भी कहते हैं, वहाँ ये भी हो सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो एक तर्जुमान, गवाही को परखने के माहिरीन, गवाहान जिन्हें आप जानते हो, और आम लोग। समाअत के आगाज में जब जज कमरा अदालत में दाखिल होता है तो आपको खड़े होना चाहिए, अगर आप ऐसा करने के काबिल हैं तो। जज को चाहिए कि वो सबका तारुफ कराए और समाअत के अमल की वजाहत करे। जज खुद मुख्तार होता है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपके केस का मुनसिफाना तरीके से फैसला करना जज की जिम्मेदारी है। अगर किसी वजह से आप आरामदेह महसूस ना करें तो जज को इससे आगाह कर दें। बेफिक्र होकर पानी पिएं। समाअत के दौरान आपका बैरिस्टर आपको अपने गवाही के बयान के मुताबिक चलने को कहेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने बयान से मुत्तफिक हैं। आपका बैरिस्टर आपसे सवालात पूछ सकता है। इसके बाद हॉपो आपसे सवालात करके आपके मुकदमे को जांचेगा। इसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। खुद से पूछे जाने वाले सवालात को गौर से सुने। अगर आपको कोई सवाल समझ ना आए तो इसे दोबारा दोहराने को कहें। अगर आपको कोई जवाब मालूम ना हो तो कहें मुझे मालूम नहीं, अंदाजा ना लगाएं। अपना वक्त लें, ऊंचा बोलें और वाज़े, मुख्तसर और जामे जवाबात दें। अगर आप तर्जुमान का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे तर्जुमा करने के मुनासिब वक्फे दें। अगर आपको तर्जुमान की बात समझ ना आए या वो कोई गलत तर्जुमानी कर रहे हो तो आपको अपने बैरिस्टर या जज को बिला झिझक बता देना चाहिए। जितना मुमकिन हो सवालात के मुकम्मल जवाब दें। कभी कभार सवालात काफी मुश्किल होते हैं। अगर आप नागवार यादों के बारे में बात कर रहे हो, जैसे अजियत या जिनसी ज्यादती का शिकार होना, या अपने मुल्क में अपने खानदान के किसी फर्द के हाथों नुकसान होने वाले वाक़ये के लिए बिल्कुल दुरुस्त लफ्जों का इस्तेमाल करें, चाहे वो बोलने में मुश्किल हो और आपको परेशानी या शर्मिंदगी महसूस हो। मुमकिन है कि आपको वजाहत करनी पड़े कि आपके मुल्क में हालात कैसे हैं। हॉपो का काम आपके सबूतों की जांच पड़ताल करना है। शायद वो आप पे एतराज करे या कहें कि आपने झूठ बोला है। अगर किसी सवाल से आप परेशान या मुतज़ब्ज़ब हो जाएं, तो हॉपो से सवाल दोहराने को कहें ताकि आपको सोचने का वाजिब वक्त मिल जाए। अगर हॉपो जारहाना या बदतमीज हो जाए तो जज को इसे रोकना चाहिए। जज भी आपसे सवालात कर सकता है। जज के साथ बराहे रास्त बात करने का ये आपका वाहिद मौका है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। जज से बात करते हुए उन्हें सर या मैडम कहें। आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। जजों के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, कुछ का अंदाज दोस्ताना और कुछ का रस्मी होता है। आप कोशिश करें कि उनका अंदाज आपकी बातों को मुतासिर ना करे। अगर आपके मुकदमे में गवाहान मौजूद हैं, तो इन्हें इंतजारगाह में बैठकर अपने बोलने की बारी का इंतजार करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई खास गवाह आपका केस मजीद न सुने, तो अपने बैरिस्टर या जज को कहें। ऐसी सूरत में वो गवाह अपना सबूत पेश करने के बाद चला जाएगा। आपके दोस्तों को समाअत में बोलने की इजाजत नहीं होगी, मां सिवाय इसके कि वो गवाहान हो।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है या आपको वक्फा करने या टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हो तो अपने बैरिस्टर या जज को कहें। तमाम सबूतों की समाअत के बाद ही हॉपो ये बताएगा कि होम ऑफिस ने आपके असाइलम को मुस्तरद करने का फैसला क्यों दिया था। आपका बैरिस्टर जज को बताएगा कि नामंजूरी का फैसला क्यों गलत था। आखिरी गुफ्तगू आपका बैरिस्टर करेगा, आपको बस सुनना होगा। अगर आपके पास बैरिस्टर नहीं है तो बात को समेटने का काम आप खुद करेंगे। समाअत के अंजाम में समाअत की दौरानियत 30 मिनटों से कई घंटों तक हो सकती है। आमतौर पर ट्रिब्यूनल 1 घंटा खाने के वक्फे के लिए दिन में 1 बजे काम रोक देगी। अमूमन जज इसी दिन आपका फैसला नहीं करेगा। समाअत के इख्तिताम पर जज आपको बता देगा कि किस दिन आपको अपने केस का फैसला मौसूल होने का इम्कान है। अगर 4 हफ्तों के अंदर आपको कोई खबर नहीं मिली तो अगर आपका कोई सॉलिसिटर है तो इससे राब्ता करें या ट्रिब्यूनल से राब्ता करें। तैयार रहें, आपको समाअत थकान वाली और खौफनाक भी महसूस हो सकती है। अपनी जिंदगी पर होती बहस को सुनना मुश्किल होता है। आपके साथ हुए वाक़यात पर आपसे सवालात किए जाना दर्दनाक होता है। आप समाअत के आगे चलने से मुतमईन और पुरसुकून महसूस कर सकते हैं या आप मायूस या थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। अपनी बात बता पाना मुफीद भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं, ज्यादातर ट्रिब्यूनल बच्चों की निगहबानी फरहम नहीं करते। कुछ जज आपके बच्चों को कमराए अदालत में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। याद रखें कि ट्रिब्यूनल में आपके साथ बच्चों का मौजूद होना सबकी तवज्जो मुंतजर करने का बाहिस बन सकता है। अपने बच्चों के सामने अपनी तल्फी यादों पर बात करने में आपको भी मुश्किल पेश आ सकती है। एक सूरत ये हो सकती है कि आप अपने बच्चों की देखभाल के लिए किसी का बंदोबस्त करें। याद रखें कि इसमें पूरा दिन भी लग सकता है। अगर आपके बच्चे स्कूल में है तो किसी ऐसे भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार का इंतजाम करें जो आपको देरी होने पर इन्हें स्कूल से ले आए। कभी कभार समाअत का इख्तिताम शाम 5 बजे के बाद होता है। अगर आप अपने साथ अपने बच्चे ट्रिब्यूनल में लाते हैं तो अपने साथ रिश्तेदार या दोस्त भी साथ लाएं जो अदालत में आपकी मौजूदगी में इंतजारगाह में बच्चों की देखभाल करें। दिन के दौरान अपने बच्चों को मसरूफ रखने के लिए खिलौने या किताबें भी साथ लाएं। समाअत के बाद आप या आपके सॉलिसिटर को जज का फैसला मौसूल होगा। इसमें चंद हफ्ते भी लग सकते हैं क्योंकि जज को सबूतों पर गौर करना होता है और अपने फैसले की तफसीली वजाहत भी फरहम करनी होती है। जैसे ही आपको अपना फैसला मौसूल हो तो अपने वकील से फौरन राब्ता करें। अगर आप नाकाम हो जाएं और आप फैसला तब्दील कराना चाहते हो तो आपको सख्ती से मुकर्रर तारीखों के अंदर अंदर आला अदालत में अपील की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर करनी होगी। आप ऐसा सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आपके ख्याल में जज ने कानूनी लिहाज से कोई संगीन गलती की हो। नतीजे से सिर्फ आपकी नामंजूरी अपील की वजह नहीं है। याद रखें कि अगर आप अपनी अपील जीत भी जाते हैं तो होम ऑफिस भी इसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है। वो भी ऐसा सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब उनके ख्याल में जज ने कानूनी लिहाज से कोई गलती की हो। नतीजा जो भी हो, आपको इस बात पर फक्र होना चाहिए कि आप अपने लिए खड़े हुए।